हेलो एवरीवन, ये वीडियो में मैं द भारतीय सक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 19 डिस्कस करने जा रहा हूँ। Section 19 talks about admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest except in the following cases. Namely, an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of such a nature that if the person making it were dead, it would be relevant as between third person under section 27 of BSA. Second, an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable. And third, an admission may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant otherwise than as an admission. ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके देखते हैं. पहला, admission cannot be proved by or on behalf of the person who makes them. Section 19 lays down the general rule that an admission may be used against a person who makes them or is representative in interest, but admission cannot be proved by or on behalf of the person making it. Further, Section 19 gives three exceptions to the general rule that admission cannot be proved by a person who makes it. Besides the three cases mentioned in the section, an admission cannot be used by a person who makes them. It is unnatural for a man to make statements in his favor. If a man makes a certain statement against his own interest, it means that the statement must be true. On the other hand, a man wants to make statements favorable to himself, even if the statements are altogether false. It is on the principle that the law has laid down that the statement will be used against the person who make them and only in certain exceptional cases by the persons who makes them. इसको एक illustration के साथ समझ लेते हैं. Illustration A. The question between A and B is whether a certain deed is or is not forged. A affirms that it is genuine, B that it is forged. A may prove a statement by that the deed is genuine, and B may prove a statement by A that the deed is forged. But A cannot prove a statement by himself that the deed is genuine, nor can B prove a statement by himself that the deed is forged. The admission against the person who makes them or is representative in interest are relevant. The self-serving statements are rejected. तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टीज ऑफ द सूट है, वो जो भी बयान दे रहा है, उसके अलावा उसके स्टेटमेंट को यहाँ पे एडमिट किया जाएगा. यहाँ पे सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को अलाउ नहीं किया जा रहा है सेक्शन 19 में. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर ए कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन है, तो यहाँ पे ए अपनी स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी एडमिशन या फिर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता. वो बी को प्रूव करेगा रॉन्ग कि ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, और बी यहाँ पे ए को गलत प्रूव करेगा कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है. खुद के स्टेटमेंट को यहाँ पे इसलिए एडमिट नहीं किया जाता है क्योंकि हर कोई अपने आप को ही सही साबित करना चाहेगा वहां पे. तो जहां पे भी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, खुद के ही सपोर्टिव स्टेटमेंट है, वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा अनलेस तीन जो एक्सेप्शन है वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. The proportion laid down in section 19 are admission may be proved as against the person who makes them or is representative in interest. तो देखो, एडमिशन उसी चीज का हो जाएगा जो ऑपोजिट पर्सन ले रहा है या फिर ऑपोजिट पर्सन दे रहा है या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं. आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हो उसको एडमिशन नहीं लिया जाएगा. एडमिशन कैनॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और इज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट. एडमिशन सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जो वहां पे पार्टीज टू द सूट है. उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन
का स्टेटमेंट एडमिशन में नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि मेरे बिहाफ पे अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, उसको एडमिट कोर्ट में नहीं किया जाएगा, बट उसके भी एक्सेप्शंस है। Admissions can be proved by or on behalf of the person who makes them or is representative in interest in the three exceptional cases. तो मेरे अलावा अगर कोई स्टेटमेंट बोलना चाहता है तो वो दे सकता है, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, बट सिर्फ 3 एक्सेप्शनल केसेस में। वो कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। पहला एक्सेप्शन, मेकर ऑफ एडमिशन डेड। Clause 1 of Section 19 lays that admission cannot be proved or on behalf of the person who makes them or by representative in interest, except when it is of such a nature that if the person making it were dead, it would be relevant as between third persons under Section 26. हमने सेक्शन 19 में क्या पढ़ा कि आज अगर मैं बोल रहा हूं कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है या फिर ये डॉक्यूमेंट सही है, तो वहां पे वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बट जहां पे जो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो उसके बिहाफ पे अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, सेल्फ सपोर्टिंग स्टेटमेंट, उसको एडमिट किया जाएगा अंडर सेक्शन 19 एज वेल एज अंडर सेक्शन 26 ऑफ द बीएसए एक्ट। तो ये पहला एक्सेप्शन है। सेक्शन 26 डील्स विद द रेलेवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन हु कैनॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस। अब देखो वो आदमी मर ही चुका है, तो फिर वो विटनेस कैसे दे पाएगा, खुद का ही स्टेटमेंट कैसे दे पाएगा। तो यहाँ पे वो पर्सन के बिहाफ पे अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, उसको एडमिट यहाँ पे कर लिया जाएगा। Section 26 of the BSA Act lays down that the statements made by person who are dead or who cannot be found may be proved if the statement was made under circumstances mentioned under subclause 1 to 8 of Section 26. हम लोग बाद में जब सेक्शन 26 रेफर करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। Subclause 2 of Section 26 lays down that when the statement was made by such person in the ordinary course of business, and in particular when it consists of an entry made by him in a book kept by him in the ordinary course of business, it is relevant. Thus, subclause 5 lays down that when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage, or adoption between persons as to whom relationships the person making it had special means of knowledge, and when the statement was made before the question was raised, it is relevant. अब इन शॉर्ट ये सारी चीजें हम लोग सेक्शन 26 में डिटेल में पढ़ेंगे। बट पहला एक्सेप्शन आपको क्या याद रखना है कि अगर जो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी डेथ हो जाती है, तो वहां पे उसके बिहाफ पे उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वही स्टेटमेंट को, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को बयान कर सकता है और वही स्टेटमेंट को एडमिट भी किया जाएगा बाय द कोर्ट। ये पहला एक्सेप्शन टू सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 क्या कहता है कि आप अपनी फेवर में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। बट ये एक्सेप्शन है टू सेक्शन 19 जब कोई आदमी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी डेथ हो जाती है। इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ समझ लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 19 सेज दैट ए द कैप्टन ऑफ अ शिप is tried for casting her away. Evidence is given to show that the ship was taken out of her proper course. A produces a book kept by him in the ordinary course of his business, showing observation alleged to have been taken by him from day to day, and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove this statement because they would be admissible between third parties if he were dead under clause B of section 26. अब देखो यहाँ पे एक इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। आज मैं कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, हमारी भी प्रेजेंट की एंट्रीज होती है, टीचर्स की भी, स्टाफ की भी, हम लोग डायरी में नोट करते हैं। अगर मैं 20 तारीख तक मैंने प्रेजेंट एब्सेंट अपना अटेंडेंस रजिस्टर में मार्क किया हुआ है और सपोज आफ्टर 20 मेरी डेथ हो जाती है, अब वहां पे जो भी एंट्रीज मैंने की हुई है बिफोर माई डेथ, मेरे मरने से पहले जितनी भी मैंने एंट्रीज की हुई है, वो प्रिज्यूम किया जाएगा दैट इट इज ट्रू और उसको एडमिट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी जो भी एंट्रीज उसने रजिस्टर में किया हुआ है बिफोर डेथ, वो वहां पे प्रिज्यूम किया जाएगा दैट इट इज ट्रू। और एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं।
A is accused of a crime committed by him at Kolkata. He produces a letter written by himself and dated at Chennai on that day and bearing the Chennai postmark of that day. The statement if the date of the letter is admissible because if A were dead, it would be admissible under clause B of section 26. अब देखो क्रिमिनल केस में ए के ऊपर एलिगेशन लग रहा हुआ है मर्डर का या फिर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस का, कहां पे, कोलकाता में। बट ए सबूत लेके आता है, प्रूफ लेके आता है कि वो उस दिन चेन्नई में था, उसके पास एक लेटर भी है, लेटर में पोस्ट ऑफिस की साइन और सिग्नेचर और सील भी है चेन्नई का। तो यहाँ पे उसको एडमिट किया जाएगा एज इफ ए वर डेड। अगर ए मर जाता तो उसको एडमिट जैसे किया जाता है वैसे ही उसको अभी एडमिट कर लिया जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? एडमिशन मेड इन अ पर्टिकुलर मेंटल और फिजिकल स्टेट अंडर सेक्शन 19 सब क्लॉज 2। The state of a man's mind or body is relevant under section 12 of the BSA Act. An admission may be proved by or on behalf of the person making it if it consists of a statement as to the existence of a state of mind or body provided that। अब देखो सेक्शन 12 में हमने स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी की रेलेवेंसी के बारे में बात की थी। कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी? पहला, सच अ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी इज इन इश्यू और रेलेवेंट। अगर इश्यू में बॉडी या माइंड से रिलेटेड, स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड, दैट मीन्स नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, एंग्री है, एंशियस है, ये सारी से रिलेटेड अगर फैक्ट इन इश्यू है तो वो चीज को एडमिट किया जाएगा। द स्टेटमेंट इज मेड एट और अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड। यहाँ पे वो स्टेटमेंट को तब एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो इश्यू हो रहा था और उस वक्त उसका स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी लैंग्वेज क्या था। एंड थर्डली, द स्टेटमेंट वाज अकम्पनीड बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल। तो सेक्शन 12 में हमने देखा था कि बॉडी या माइंड में क्या चल रहा है इसका हम लोग प्रूफ नहीं दे सकते कोर्ट में, बट थिंकिंग प्रोसेस के बाद आप जो एक्टस रियस कर रहे हो, मेंस रिया के बाद आप जो एक्टस रियस कर रहे हो, मतलब जो भी चीज कंडक्ट कर रहे हो फिजिकली, उसको प्रूव किया जाएगा विद द कनेक्शन ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। So section 12 merely declares such statement are relevant. The clause 2 of section 19 shows that such fact or statement may be proved on behalf of the person making them, notwithstanding the general rule that persons cannot make evidence for themselves by what they choose to say। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे माइंड और बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट इन इश्यूज में है या फिर रेलेवेंट फैक्ट है तो उसको एडमिट कर लिया जाएगा। इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ देख लेते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। A may prove the statement though they are admission because they are explanatory of conduct influenced by fact and issue। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए के पास जो चोरी का सामान था वो उसको नॉलेज में था, मतलब उसको पता था कि ये चोरी का सामान है। अगर यहाँ पे ए ये मेंटल स्टेट या स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव कर देता है कि उस वक्त जब उसके पास वो गुड्स थे वो स्टोलन थे या फिर चोरी का था, वो उसको नहीं पता था, तो यहाँ पे वो स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त का एडमिट कर लिया जाएगा। भले ही वो सेल्फ सपोर्टिंग है, सेल्फ डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट है, बट वहां पे स्टेट ऑफ माइंड को एडमिट किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। A is accused of fraudulently having in his possession counterfeit currency which he knew to be counterfeit. He offers to prove that he asked a skillful person to examine the currency as he doubted whether it was counterfeit or not, and that person did examine it and told him it was genuine। A may prove this fact। अब देखो यहाँ पे भी स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके नॉलेज में है कि नहीं। ए के पास एक नोट है, इंडियन नोट है, अब उसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये फेक करेंसी नोट है या फिर सच में है, ट्रू है। तो वहां पे उसने एक एक्सपर्ट को बुलाया जो यहाँ पे प्रूफ दे सके कि क्या वो नोट सही है या गलत है। अगर वहां पे वो एक्सपर्ट ने ये बयान दिया, स्टेटमेंट दिया दैट द करेंसी इज जेन्युइन, तो यहाँ पे ए ये चीज को प्रूव कर सकता है फॉर स्टेट ऑफ माइंड कि वेदर इज कल्प्रिट और नॉट,
क्या उसको पता है कि सच में नोट सही है या गलत है? तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन किया गया है वो अपने स्टेट ऑफ माइंड से वो सपोर्ट में प्रूव कर सकता है. And third exception is statement of admission when it is otherwise relevant. According to section 19 subclause 3, an admission may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant otherwise than an admission. A statement can be proved either as an admission of a relevant fact or as a proof the existence of a particular fact. In certain cases, a statement is allowed to be proved not because it is an admission, but because it establishes the existence or non existence of a relevant fact or a fact in issue. In this connection, Section 4 of the Evidence Act, dealing with the doctrine of res geste, may be referred to, wherein it is stated that facts which, though not in issue, are so connected with a fact in issue as to form the part of the same transaction, are relevant whether they occur at the same time and place or at different times and places. However, it is impossible to hold that a statement which is inadmissible as an admission under the general rule, but it can be made admissible as such under clause 3 of section 19. तो सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 किस चीज की बात कर रहा है? अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इतना कनेक्टेड है तो उसको एडमिट किया जा सकता है. ऑल्दो वहां पे उसको पहले रेज नहीं किया गया था, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट का वहां पे यूज नहीं किया गया था, बट इतने कनेक्टेड है टूवर्ड्स ईच अदर, तो वहां पे दूसरे स्टेटमेंट को भी एडमिट किया जा सकता है. रेस्ट जस्ट वही कहता है सेक्शन 4 का, दैट वन इवेंट इज कनेक्टेड विद द अदर इवेंट सो क्लोजली दैट इट विल कम टू अ कंक्लूजन और इट इज अ रेलेवेंट फैक्ट, तो वहां पे उसको एडमिट कर लिया जाएगा. In Ram Bharose versus Diman, a statement made by the deceased donor in his will that the gift deed executed by him was fictitious was held to be admission under exception 3. आज देखो, अगर कोई मरा हुआ कोई इंसान मरने से पहले अपने विल में लिख रहा है कि यहाँ पे जो भी उसने गिफ्ट दिया हुआ है वो फिक्टिशियस है या फिर वो फॉल्स है या फिर फ्रॉड है, तो यहाँ पे उसको एडमिट किया जाएगा अंडर एक्सेप्शन 3 ऑफ दैट. कनेक्टेड है, डेथ, डेथ के पहले विल और डेथ के बाद जिसको प्रॉपर्टी मिल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे कनेक्टेड है. तो वहां पे जो विल उसने बनाया हुआ था डेथ से पहले, उसको यहाँ पे रेस जेस्टे के अंदर कंसिडर कर लिया जाएगा. आज एक मूवी भी थी धमाल मूवी, उसमें जो विलन था उसने कहीं से 10 करोड़ की चोरी की थी, उसके बाद बड़े से डब्लू में उसको दफन कर दिया था और उसके बाद वो कहीं पे जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया. मरने से पहले जो उसने वो 4 एक्टर्स को बोला था कि बड़े से डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए, मरने से पहले उसने जो बैंक से पैसे चुराए थे और वहां पे जाके छुपा लिए पैसे बड़े से डब्लू के नीचे, ये सारे के सारे फैक्ट एक्सेप्शन 3 ऑफ सेक्शन 19 में एडमिट हो जाएंगे. ऑल्दो मरने के बाद उसने ये बयान दिया, बट मरने से पहले जो भी उसके एक्टस रियस थे, जो भी उसके फिजिकल एक्ट थे, वो कनेक्टेड है, कंटिन्यूअस में है चोरी से, तो वहां पे उसको एडमिट किया जाएगा अंडर सेक्शन 19 सब क्लॉज 3. तो सेक्शन 19 क्या कह रहा है कि आप डायरेक्टली सेल्फ सपोर्टिंग स्टेटमेंट खुद के लिए नहीं दे सकते अनलेस 3 एक्सेप्शन में वो फॉल हो रहा हो. सेक्शन 19 सब क्लॉज 1, डेथ ऑफ अ पार्टी. सेक्शन 19 सब क्लॉज 2 कि यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके जो भी रजिस्टर आपने मेंटेन किया हुआ है या फिर आपके जो भी कोर्स ऑफ वर्क में कनेक्टेड थे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. या फिर सेक्शन 19 सब क्लॉज 3, it is a part of res geste, connected event with other event. सेक्शन 19 सब क्लॉज 2 आई एम सॉरी स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा है, जहां पे स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करना हो और उससे रिलेटेड अगर कोई फिजिकल एक्ट है तो वहां पे आप उसको प्रूव कर सकते हो अंडर सेक्शन 19 सब क्लॉज 2. तो सेक्शन 19 जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट जो सेल्फ सपोर्टिंग है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे अनलेस ये 3 एक्सेप्शंस में फॉल हो रहे हो, तभी जाके उसको एडमिट किया जाएगा अंडर सेक्शन 19. यहाँ पे हमारा सेक्शन 19 खत्म होता है.
Thank you.